नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल रखें, माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है एंटरटेनमेंट से रिलेटेड RRR थिएटर। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है RRR ट्रेलर लॉन्च, बैक टू बैक फनी मोमेंट्स, NTR, आलिया भट्ट, अजय देवगन। बाद में अकेले में मिलना तब सटकेगी भी और रिजल्ट भी मिलेगा। आपकी भी लाइफ में एक बहुत बड़े आर हैं, तो आप मानती हैं कि आर बहुत लकी फैक्टर है आपके लिए? स्पेशल देखें। Okay, his question was. I understood the question. What was the biggest difficulty while shooting the film RRR? Anyways, thank you for making me feel so old. I was expecting that. लैंग्वेज और बैरियर नहीं होता, मेरे साथ बहुत हुआ क्योंकि धनया जी प्रोड्यूसर हैं और इनको हिंदी नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती। आलिया जी ऑन योर लेफ्ट, हाय। ऑन योर लेफ्ट, हाय। आलिया जी, आजकल का जो सबसे ट्रेंडिंग अल्फ़ाबेट है वो है आर। सो आपकी भी लाइफ में एक बहुत बड़े आर हैं, तो आप मानती हैं कि आर बहुत लकी फैक्टर है आपके लिए? हाँ, ऐसे होना चाहिए, वैसे ही बात सही है। I'm stumped. मेरे पास जवाब नहीं है. I'm trying to be intelligent right now. I don't have a good answer. G. बस R is a lovely alphabet, but so is A. First of all, I would just like to tell you something. Don't tell anything. Please. I mean, it's please do not even compare me with Ajay sir for his seniority, for a man he is. We were kids. We grew up watching his films, and he was our very own action superstar then and even now. So I still remember his entry in Phul Aur Khante, you know, where he was standing on top of a bike, and I was like, yaar, ऐसा कैसे हो सकता है यार? Can I do it? And my mom was like, no. This is movie and it happens only in movies. This doesn't happen in real life. I mean, like, see, I've watched my grandfather's films, my uncle's films. You know, we've watched a lot of films. But that entry for me was like crazy. So please, you know, when I worked with him, with Ajay sir, it was like working with a guru. I mean, like we didn't have the opportunity to share screen space with him, but the small opportunity I had to go and like visit the sets when he was working, it really felt very, you know, it was, you know, I cherished it a lot. You know, seeing such a gentleman and that's about it for me. That's my feeling. जैसा कि इन्होंने कहा, anyways, thank you for making me feel so old. I was expecting that. But हाँ, हमारा काम स्क्रीन पे हम साथ में नहीं है फिल्म में, बट शूटिंग के वक्त इन्होंने विजिट किया था, and it was we had a great time. We had lunch together and lovely. आता माझी सटकली. I'll say you. आता माझी सटकली. आता माझी सटकली. That's from Singham, right? ठीक है. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మీ అన్నగారు ఎన్టీఆర్ అన్నగారు మీకు బిగ్గెస్ట్ డిఫికల్టీ ఎప్పుడు అనిపించింది సార్ షూటింగ్? Okay, his question was. I understood the question. What was the biggest difficulty while shooting the film RRR? I've understood. Let me tell you, on set before you answer that question, NTR and Ramcharan were always talking to each other in Telugu in front of me, and I was always looking like one tennis ball, left, right, center, waiting for somebody to translate it to me. Now I'll start translating. No way. Yeah. No. Y'all were There were always- so many times we really felt that, you know what, we should not talk in Telugu and make sure we speak in English or Hindi
so that Alia understands what we're talking about. No, you're almost purposely No, trying to that travel. maybe we were rehearsing our lines or dialogues or whatever. But yeah, ठीक है। every part of shooting for Triple R was क्या बात है really यार। हर demanded a lot पार्ट from us. मूवी का As actors, as दिलो जान लगा दी। as individuals, we really had to put in our heart and soul for it. जान डाल Because दी इन्होंने फिल्म में that यार। man there बहुत has put मतलब in that बहुत much दिलो of जान से belief. एक्टिंग करी है, काम So we करा have to deliver. We had to. लैंग्वेज और बैरियर नहीं होता, मेरे साथ बहुत हुआ क्योंकि धनया जी प्रोड्यूसर हैं डिफिकल्टी बता और इनको हिंदी नहीं आती, Biggest मुझे इंग्लिश difficulty। नहीं आती। तो मतलब हम लोग नंबर पे ही पेपर पे लिखते थे और एक दूसरे को समझते थे कि हम राजा मौली जी तक कैसे भी करके कन्विंस करके ये मुझे इस फिल्म का हिस्सा बनाएंगे। तो मुझे कोई ऐसा ये नहीं था कि और दूसरा इनकी फिल्म जो हमें हमारे पार्टनर हैं संजय जी, अमिताभ जी जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं पेन मरुधर और हम लोग की टीम ये पहली फिल्म होगी जो हर प्लेटफॉर्म पे देखने मिलेगी। अच्छा। कभी पार्टनरशिप नहीं होती कि जी पे आने वाली फिल्म स्टार पे नहीं दिखती, तो ये पहली फिल्म होगी कि जो हर प्लेटफॉर्म पे देखने मिलेगी। హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు తెలుగులో మాట్లాడతాం. Thank you so much. Yes, please. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. Most scary part was I had to speak in Telugu. I think I managed eventually. हेलो नहीं वैसा नहीं होता है, you know, it's like you just have to. I mean, नहीं, you know, this doesn't happen in our industry when you're working for a movie with Jackana. You're there, you know, you're in there for a long time, and you have to accept it. The sooner you accept, the better it is. So, I want to work with you. And he said, you know, he was very gracious, said, yes, I would love to work with you as well. I said, so I'll do anything. Just give me a part in your film. I want to work with you. Natu. The step has been very much famous in like short period of time. There has been more than 10,000 reels are saying up. There are more hits on it, where you see more 10 lakhs of views and likes are there on your completely one that hook step in very short Good period of question. time. I just want to know how much time it took for you to practice that and the bond, because that's quite a kind of tuning with the step. Was it so easy or tough? It was actually a very easy step. I'm not trying to tell you it's a very tough step. It's a very easy step. Yeah? Just 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and that's it. It's actually very easy. But I don't know. It's him who's made it feel very tough. we were, you know, because of the pandemic, we couldn't shoot here in India. So he took us all the way to Kiev in Ukraine and tortured us there. 18 tags. I mean, 18 takes for that step. Purely because he wanted us to, you know, like, he would sit in front of the monitor and step freeze the step. So that the coordination, the sync between me and Charan is like on dot. Then how can you do it? I went up to him and said, see, each, both of us have different styles of dancing. So as a director, bring that style together. He's like, no. He said, it is my style. Because it was Rajmouli sir's style, na? It was his idea. Absolutely. So every day, well, I don't know, yeah. You know, even the weather was so, you know, like we were very unlucky. The sun would set at 8 in the night and would rise at 6 in the morning. So 8 ke baad, Wow. 9 baje tak he would Neat make us mehnat. go through the rehearsal. Again, start off at 6 in the morning. So it's like, why did we do 20 this takes, rehearsal when 18 you're takes. automatically any which way is going to take 20 takes then? Okay, Rajmouli It was sir. torturous. I don't think so. I don't think there is any space that he's not comfortable. He's like, I narrated him his role. The first answer, the first question he asked me is, when do you need my dates? You know, To not dedicate dates, you have to ओके dedicate years to यार मज़ा आ रहा था. It's basically dedicating your whole life. जी जनाब, अब पता चला कि एक फिल्म कितनी मुश्किल से बनती है. हमने कहा दिलो जान से हमने मतलब मेहनत करी है, एक्टिंग करी है बहुत मतलब. अच्छा, इसका जब हमने ट्रेलर पे रिएक्शन दिया था तो तभी आपने ये बात बोली थी कि इसके पीछे बड़ी मेहनत होती है, बहुत मेहनत होती है. नहीं, इस मूवी के पीछे आप कह रहे थे कि मुझे लग रहा है बहुत मेहनत है. बिल्कुल. आपको अंदाज़ा हुआ इस फिल्म में कितनी मेहनत हुई, कितने रीटेक पे रीटेक, कितनी मतलब है कि सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे डायरेक्टर कि हाँ भाई अब करो, अब ओके है, अब ओके. अच्छा, हम तो बड़े मज़े से देख लेते हैं फिल्म, हम तो बड़े इजी होके देख लेते हैं, लेकिन हमें सोच भी नहीं सकते कि इस काम के पीछे
कितनी मेहनत, कितनी इनकी एक स्ट्रगल है, उसे हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आपने अंदाज़ा लगाया? हाँ, मुझे तो लगा कि बहुत मेहनत रही होगी, जैसे कि उन्होंने बोला कि मतलब मैंने जब सडनली मतलब वही कह रहे हैं कि जब देखा गया था तो ऐसा लगता है स्टेप्स बहुत इजी हैं, ये तो बहुत 2 मिनट में हो जाएंगे, लेकिन मतलब वो कह रहे थे ये शख्स जो हैं इन्होंने मतलब चीज़ों को इतना अच्छा, उनको पता है उनको क्या चाहिए होगी, राजा मौली नाम है उनका, उनको वो नहीं चाहते होंगे कि हम कॉम्प्रोमाइज़ करें, और ना ही वो कॉम्प्रोमाइज़ करने की उसमें थे, हक में थे, छोटी सी भी चीज़ वो कह रहे नहीं फ्रीज कर करके देख रहे थे। अच्छा, वो एक बात उनकी ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी, जैसे मेरा एक अलग स्टाइल है, आपका एक अलग स्टाइल है, फिर वो तो हीरो है, उनका अलग है, रामचरण जो एक्टर हैं उनका अलग है। अब वो चाह रहे थे कि दोनों एक ही पॉइंट पे आकर एक ही तरीके से करके दिखाएं, ठीक है, किसी में भी 19-20 ना हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजा मौली के अंदर मैंने ये देखा कि परफेक्शन चाहिए उनको, परफेक्शन काम में वो मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अच्छा, 18 टैक्स 20 टैक्स 18 टेक का मतलब है कि आपने एक दिन और मज़ीद ले लिया, यानी कि अच्छा हर फिल्म का बजट तय होता है दिनों के हिसाब से कि यार ये इतने दिन में शूट होना है, इसमें ये चीज़ें हैं, इतने सेट है, तो बजट तय होता है, फिर उस बजट के अंदर करना होता है। अब अगर कोई चीज़ नहीं हो पा रही तो उसके लिए आपका दिन एक्स्ट्रा गया, आपके सारा जो मजमा लगा हुआ है, चीज़ें हैं, सारे एक्टर्स आए हुए हैं, इसका एक्स्ट्राज है, सब कुछ है, स्टूडियो हायर है, जो भी है, वो कितने दिनों के लिए है, आपका मज़ीद एक दिन हो गया, इस तरह से एक आध सीन और मज़ीद फंसा, एक दिन और हो गया, तो आपका बजट कहाँ से कहाँ चला जाता है। तो ये मेरे ख्याल में सारी चीज़ों को कैलकुलेशन करते होंगे कि हमने मज़ीद भी अगर ऊपर चले गए तो कितना जा सकते हैं, कितना जा सकते हैं, क्योंकि इनका जो लॉक बजट होता है ना, उस लॉक बजट से भी ऊपर बजट होता होगा। क्यों? क्योंकि ये तो फिक्स हो ही नहीं सकता ना कि कहीं पे डायरेक्टर फंस जाए, कहीं पे डायरेक्टर कहे यार मुझे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे मज़ीद चाहिए, मज़ीद चाहिए। अच्छा, एक बात इस इंटरव्यू में, ये मेरे ख्याल में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और न्यूज़ वाले बैठे हुए थे और ये लॉन्चिंग वगैरह का दिन होगा शायद, आपको इसमें सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? मुझे इंग्लिश नहीं आती, उनको इंग्लिश नहीं आती, वो भी एक इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, पेपर पे लिख के बता रहे एक दूसरे को, अच्छा जब अच्छा आपने एक चीज़ और नोट नहीं की, जब वो ये कह रहे तब भी वो खामोश बैठे हुए क्यों? मुझे आपका ख्याल, आपको भी आप मतलब मुझे उनकी जगह पे यकीन करें, आप दिख रहे हैं इंग्लिश नहीं आती। क्यों नहीं आती? सर पे से आप मुझसे बात करें। क्यों नहीं? अब आप शहनाज वाली इंग्लिश बोल। खैर आती है, बहुत अच्छे तक आती है, बहुत अच्छी आती है, बहुत आगे तक आती है। खैर अच्छा, जब वो ये कह रहे थे कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, क्या होता है? नहीं मैं नहीं बोल सकता। खैर बहरहाल वो जो कह रहे थे तब भी वो खामोश बैठे हुए थे प्रोड्यूसर साहब। हाँ। अच्छा, एक और चीज़ कि जो उन्होंने अजय सर को रिस्पेक्ट दी, कमाल, वो मुझे अच्छा उन्होंने बोला, क्या बोला उन्होंने? बोला कि मैं जब किड था, छोटा सा था, मैं अपनी चाइल्डहुड से उनको देख रहा हूँ, फूल और कांटे जब मैंने देखी थी। अच्छा, एंट्री की बात करें अगर हम, अजय सर की एंट्री कमाल की होती, बिल्कुल ठीक है ना। हमने पहले भी अक्षय कुमार की एक मूवी थी, तो हमने उसमें भी बात करी थी कि अजय देवगन की एंट्री हो गई, अक्षय कुमार की एंट्री हो गई, बड़ी यूनिक रखी जाती है, ठीक है ना, सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी। और फिर अच्छा उन्होंने उस बात को कैसे ले लिया कि आपने मुझे ऑर्डर साइड कर दिया। अच्छा, वो कह रहे थे मुझे ये पता था कि आप कहोगे। बहुत मतलब बहुत एंजॉय करा, बहुत मतलब तफरीयाँ चल रही थी, मैं तो काफ़ी तफरी वाला लेकिन ये है कि मैंने ये चीज़ नोट की है कि जिस इंडस्ट्री में जो आर्टिस्ट अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करते हैं वो कामयाब होते हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि मैं अजय सर की सीनियरिटी को चैलेंज कर ही नहीं सकता, मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये मेरे गुरु हैं और मैंने काम किया इनके साथ, तो मैंने यही सोचा है कि मतलब ये सोचकर यही थॉट्स हैं मेरे और यही ख्यालात, यही मेरी मतलब एक फीलिंग्स हैं कि मैंने अपने गुरु के साथ काम किया। बहुत मतलब एक बड़ी बात है, और शेयर करने का मौका मिला मुझे, और अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट देना वाले ही कामयाब होते हैं। आज अगर जूनियर NTR की इतनी इज्जत है, रामचरण की इतनी इज्जत है, तो मैं अगर इनको पर्सनली नहीं भी जानता तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरह से इस इंटरव्यू में हमें पता चला कि अजय सर की इन्होंने रिस्पेक्ट की है, तो इस तरह जो उनकी अपनी इंडस्ट्री के भी जो सीनियर एक्टर हैं जिनके साथ वो काम करते रहे हैं, उनकी भी इसी तरह इज्जत करते हैं आज अगर इन्हें इतना मकाम मिला है तो। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि बहुत मैंने ये चीज़ नोट की है नए एक्टर्स में, जूनियर आर्टिस्टों में, जो थोड़ा सा नाम होता है, थोड़ा सा कुछ काम कर लेते हैं, तो पता नहीं अपने आप को क्या समझने लग जाते हैं कि मैं तो ये हूँ, मैंने तो फलानी फिल्म कर ली, मैंने तो ड्रामा कर लिया। मैंने ये चीज़ ना इंडिया में कम देखी है, मैंने फिर भी देखा है कि मतलब जो जूनियर है जूनियर है, सीनियर है, ठीक है। जैसे अमित जी की मैंने देखा इतनी रिस्पेक्ट है, शाहरुख की देखा मैंने इतनी रिस्पेक्ट है, अजय देवगन हो गए, अक्षय कुमार हो गए, ये सब सीनियर हैं, इनकी बहुत अच्छी बहुत रिस्पेक्ट है, कोई भी मतलब इनको चैलेंज नहीं कर सकता इनके काम को लेकर, इनकी सीनियरिटी को लेकर। लेकिन मैंने पाकिस्तान में ये देखा है कि 4 दिन में अगर कोई एक्ट्रेस या एक्टर फेमस हो गया तो वो जैसे हुमायूं सईद हो गए,
ठीक है, हमारे बड़े सीनियर एक्टर हैं, इसी तरह एक दो एक्टर्स और हैं जो बहुत सीनियर हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते उस तरीके से। मैंने पता नहीं क्यों ये चीज़ नोटिस करी है पाकिस्तान में। देखिए जो एक्टर जो एक्ट्रेस जो है किसी की अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो उनका फ्यूचर लॉन्ग टर्म नहीं चलता। 100% मतलब है कि आप आज हैं तो कल नहीं होंगे, उस तरह आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। जैसे वो कहते हैं ना लाइफ में कि जो करते हैं वो मिलता है, वो भुगतना है आपने, तो आपको वो रिस्पेक्ट नहीं देंगे। अच्छा रिस्पेक्ट क्या है, मतलब मैं आपको एक बड़ी अजीबोगरीब बात बताऊं, थोड़ा सा बात को समझिएगा कि हम अगर किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होते तो ये सोच के नहीं करते कि हम बड़े हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा सोचिएगा कि मैं क्यों इनकी रिस्पेक्ट करूं, मैं खुद एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूं। अगर सोचा जाए तो आपने अगर किसी की रिस्पेक्ट की आपको रिटर्न में भी तो मिलेगी, आपको उससे 10 गुना ज़्यादा मिलेगी और आपको उससे बड़ा इंसान समझा जाएगा। उसके लिए आप अपने लिए ही कर रहे हो, मतलब कैसे उलट बात है। मतलब है कि करना क्या है, रिस्पेक्ट देनी है तो रिस्पेक्ट मिलनी है, और हमारे माइंड दोगे वही आपको रिटर्न मिलेगा ना। आप देखें आप अपने मतलब आप रिस्पेक्ट दोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आप किसी की इंसल्ट करोगे तो आपकी भी 4 लोग आगे इंसल्ट करेंगे। अब जैसे जूनियर NTR जो बता रहे थे अजय सर के बारे में, तो आप ईमानदारी से बताएं आपके दिल में कितनी रिस्पेक्ट इनके लिए हो रही थी? बिल्कुल मेरे दिल में कितनी रिस्पेक्ट हो रही थी, तो बहुत मतलब इनका मुकाम एक बहुत कि यार इतनी इज्जत तो हर कोई करता है, लेकिन इतनी रिस्पेक्ट कि यार ये मेरे गुरु हैं। और उन्होंने सबसे पहले बात स्टार्ट ही यहाँ से करी कि मेरा और उनका तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं, ठीक है ना। आप मुझे और उनको तो कंपैरिजन करें ही नहीं, हमें एक तरीके से कंपेयर ना करें, एक लेवल पे ला कर रखें। वो बहुत सीनियर है मेरे सामने, उनका एक प्रोफाइल है, उनका एक एक्सपीरियंस है, मैं उनको चैलेंज नहीं कर सकता। तो दोस्तों हमें तो बहुत बेचैनी से बेसब्री से इस फिल्म का इंतज़ार है। मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में लोगों को इंतज़ार होगा। अच्छा पता है मुझे ये काम और ज़्यादा हार्ड वर्किंग इसलिए भी लगता है कि जो लोग मीडिया से रिलेटेड होते हैं या एंटरटेनमेंट से रिलेटेड होते हैं या किसी ऐसी इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। देखिए अगर हम ऑफिस जॉब भी करते हैं 9 to 5, उसके बाद आप फ्री हो। अच्छा इनका काम ऐसा है, इतना मतलब हार्ड वर्किंग काम है, इतना हार्ड वर्किंग होता है कि अगर आप 6 बजे भी निकल रहे हो ना तो आप रात के 9 भी बज सकते हैं, आपको 10 भी बज सकते हैं, 12 भी बज सकते हैं, जब तक एक्यूरेसी ना हो, जब तक बाकी आपका टाइम फिक्स्ड नहीं। तो मुझे इसलिए लगता है कि ये ज़्यादा मेहनत करते हैं, दूसरे कामों से ज़्यादा मेहनत इसमें है। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है कि आपको दिन रात एक करना पड़ता है, बारिश है, सर्दी है, गर्मी है, कुछ भी हो। जैसे उन्होंने कहा पैंडेमिक में हमें बहुत मसले मसाइल हुए। अच्छा मिसाल के तौर पर ठंड का मौसम है बिल्कुल, और उन्होंने बगैर कमीज़ के कोई सीन करना है, अब बताएं, क्योंकि वो सीन तो नॉर्मल फाइट का सीन है, जो भी सीन है, कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे बियर करेंगे, किस तरह मुश्किल होता होगा। खैर दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा लगा इनकी गपशप सुन के, एंजॉय किया वीडियो को हमने। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।